ہمارے کونسلیٹس اور ایمبیسیز کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. آپ سب خواتین و حضرات جو کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو تقریباً معلوم ہوگا کہ ہمارا شہر سیالکوٹ ہمارے کھیلوں کے سامان کی برآمدات کے لیے ایک خاص مقام اور شہرت رکھتا ہے. اس کانٹیکس میں جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ 2026 میں فیفا ورلڈ کپ منعقد ہو رہا ہے، جس کے وینیوز میں سے ٹورنٹو بھی ایک وینیو ہے جہاں غالباً 3 میچ 3 غالباً یہاں پہ اور 3 شاید وینکوور میں ہیں، تو ٹوٹل کینیڈا کے اندر 6 میچ کھیلے جائیں گے. اس لحاظ سے ہم نے یہ سوچا اور بیک ہوم پاکستان میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ خط و کتابت کے بعد اور حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فیفا ورلڈ کپ 2026 کے تناظر میں انتہائی اہم ہوگا کہ اگر ہم پاکستانی مصنوعات کو اور خصوصاً اسپورٹس گڈس کھیلوں کے سامان کو کینیڈا کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ متعارف کرا سکیں. ہم سب کے تقریباً میرا خیال ہے ہم سب کے علم میں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال گزشتہ 3 یا 4 اس سے پہلے جو فیفا ورلڈ کپ ہو چکے ہیں ان میں استعمال ہوا ہے، اور اس آنے والے فیفا ورلڈ کپ میں بھی میڈ ان پاکستان فٹ بال استعمال ہوگا. یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس بات کو یہاں کے لوکل کینیڈینز تک پہنچانا، یہاں کی سپورٹس ایسوسیشن تک یہ پیغام پہنچانا اور اویئرنیس پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سارے مقامی لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر جو فٹ بال استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کا بنا ہوا ہے. تو اس تناظر میں ہم نے پاکستان سے اسپورٹس گڈس ایسوسیشن کا ایک ڈیلیگیشن ترتیب دیا ہے جو کہ انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے نیکسٹ ویک. جی سر 14 تاریخ 13 یا 14 تک وہ لوگ پہنچ جائیں گے، اور یہاں پہ ہم جو کینیڈین اسپورٹس گڈس ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہیں، اور ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے تاکہ ہم پاکستانی ایکسپورٹرز کو کینیڈین ایکسپورٹرز کے ساتھ انگیج کروا سکیں. اور اس سارے پروگرام میں ہم نے 2 دن کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایونٹس رکھے ہیں جن کی تفصیل ابھی ہم ہمارے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر آپ کو بتائیں گے. لیکن اوور آل مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی بنی ہوئی اسپورٹس گڈس اور اسپیشلی میڈ ان پاکستان فٹ بال جو کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہوگا اس کو نہ صرف متعارف کرایا جائے بلکہ ہمارے پاکستانی ایکسپورٹرز اور کینیڈین امپورٹرز کے درمیان ایک بامقصد اور بامعنی انگیجمنٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے. تو اس توسط سے میری آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے، اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے ٹی وی جو پروگرامز، ویلاگز یا جو بھی میڈیم ہے اس کے ذریعے آپ اس بات کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک
ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. اور ہمارے ایونٹس جو ہیں اس پہ ایک ہم نے فٹ بال میچ بھی رکھا ہوا ہے, تو اس کی بھی میں چاہوں گا, میری درخواست ہوگی کہ آپ سب اس کی بھی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں تاکہ اس کے اندر میکسیمم لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور وہ ایک اچھا ایونٹ ثابت ہو جس سے ہم اپنے پاکستان کا نام جو ہے وہ متعارف کرا سکیں اور پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات جو ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں پہ مقامی لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کو انٹروڈیوس کرا سکیں. تھینک یو ویری مچ. نو آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو مائی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسل جنجوعہ صاحب, اگر وہ مزید جو یہاں پہ ہمارے ایونٹ سے سلسلے میں ہونے ہیں اس کی طرح تفصیل آپ کو بتا دیں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے سر نے بخوبی طریقے سے بتایا, یہ باعث پاکستانی ہم سب کے لیے باعث فخر بات ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹنگ اسپیکٹیکل ہوتا ہے, جس کا ایک میچ 1 ارب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, اس ورلڈ کپ کے اندر پچھلے 4 ورلڈ کپ سے لگاتار الحمدللہ ہم وہ بال سیاہ کورٹ سے بنا رہے ہیں جو کہ دنیا بھر کھیلتی ہے, اور آج تک کوئی بھی ملک دنیا کا یہ چیز ہم سے نہ لے سکا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو جس طرح کاؤنسل جنرل صاحب نے بتایا کہ مین مقصد جو ایونٹس کرانے کے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کینیڈین قوم کو, کینیڈین کے لوگوں کو ہم ایس پاکستانی شہری یہ بتا سکیں, باور کرائیں کہ یہ باعث فخر چیز ہے ہمارے لیے, اور ان کو بتائیں کہ یہ جو فٹ بالز آ رہی ہیں اگلے سال 2026 میں ورلڈ کپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے اندر جو ورلڈ کپ بال یوز اس کا نام ہے ٹرے ہونڈا, وہ بھی اس بار سیالکوٹ میں بنی ہے. جو اس سے پچھلا ورلڈ کپ تھا اس کی ورلڈ کپ بال تھی الرحلہ, وہ بھی پاکستان میں بنی تھی. اس سے پہلے جو برازیل میں ورلڈ کپ ہوا برازوکا بال تھی, وہ بھی پاکستان میں بنی. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ جس طرح سر نے بتایا کہ مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی ایکسپورٹس کو اس ملک میں کینیڈا میں بڑھائیں, اور سپورٹنگ بڑی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ہم نے ریلائز کیا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور آج کل جیسا آپ نے سنا بھی ہوگا ٹیرف کی جنگ چل رہی ہے, ٹیرف وار چل رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک ایڈورسٹی نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی ہے, اپرچونٹی ٹو برنگ کینیڈا اینڈ پاکستان کلوزر ٹوگیدر. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ایونٹس ہم کروا رہے ہیں ٹورنٹو میں. 15 تاریخ کو ہم کینیڈین سپورٹنگ کوڈ ایسوسیشن کے ساتھ ایک ٹریڈ شو کروا رہے ہیں جو کہ بالکل پروفیشنل ایونٹ ہوگا B2B نیٹورکنگ کے لیے. اس میں کینیڈین کمپنیز بیٹھے ہوں گی, پاکستانی ایکسپورٹرز بیٹھے ہوں گے, اور ان کے بیچ میں رابطے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 15 کو ایونٹ ہوگا, اور 16 کو جو ایونٹ ہے ہمارا یہ کمیونٹی ایونٹ ہے اوپن فار پبلک, اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم کینیڈین نیشنلز کو, کینیڈا کو, قوم کو بتا سکیں کہ جی ہم جو فٹ بال کھلا رہے ہیں وہی انشاءاللہ کے ساتھ ورلڈ کپ میں یوز ہو. سب سے درخواست ہے کہ اس جو 16 ستمبر کو ایونٹ ہے 7935 کینیڈی روڈ پہ برمپٹن میں, یہ اوپن فار پبلک ہے, اپنی فیملیز کو لے کے آئیں تاکہ ہم سب یہ اس موقع سے مستفید ہو سکیں, اپنے بچوں کو بتائیں. ان کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ یہ جو فٹ بال یوز ہوگی وہ اس ایونٹ میں پاکستان کی طرف سے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ایونٹ میں ہم بچوں کے لیے جمپنگ جیکس لگوائیں گے, پاکستانی ڈاکومنٹریز چلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہمارے ایکسپورٹرز آ رہے ہیں ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ اسپیشل ہمارے لیے اسپورٹنگ گڈس لے کے آئیں, فری سیمپلس لے کے آئیں. اس میں فٹ بالز ہوں گی, فٹ بال کے گلوز ہوں گے, اپیرلس ہوں گی, جو کہ انشاءاللہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس فنکشن کے اندر. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پارٹنرز ہیں میں ان کی بھی بہت شکر مند ہوں, خاص طور پہ افتخار بھائی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کینیڈین کنگز یہ ہمارے مین کرتے دھرتے ہیں جو ماشاء اللہ ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے لیے. برمپٹن سپر لیگ, اس کا میں بہت شکر مند ہوں کہ برمپٹن سپر لیگ نے ہمیں وہ ویلیو مہیا کیا, ساتھ پارٹنرشپ کی, جس میں ہم مل کے وہ میچ کریں گے. کرکٹ کا میچ بھی ہوگا, فٹ بال کا میچ بھی ہوگا, ایک میلہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ ہمارے اسنیکس ہوں گے وہاں پہ, تو کاشف بھائی موجود ہے یہاں پہ, سپر ایشیا ہانڈی گروپ, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. اس کے اندر کرسپی جو ہیں وہ بھی اسنیکس دیں گے. تو اگین ایک انشاءاللہ میلہ ہوگا کاؤنسلیٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے, جس میں ہم نے سب کو بلانا ہے, فیملیز کو بلانا ہے, ساتھ لے کے آنا ہے, اور مقصد اگین ہے کہ پاکستان زندہ باد انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ جو فٹ بال کی ٹیم کے پلیئر ہوں گے اس میں کس ایج کے اور پاکستانی سارے ہوں گے یا دوسری کچھ ٹیمیں؟ سر اوپن ہے سر, مین ہم نے مقصد مین ہمارا میلہ, تو ہم بھی کھیل رہے ہوں گے کاؤنسلر کی طرف سے. اگر آپ کھیلنا چاہیں تو آپ کو بھی ہم بلاتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں. افتخار بھائی ہوں گے, بچے ہوں گے, تو مل کے کھیلیں گے. مقصد میچ نہیں ہے, مقصد ہے کہ فن کھیلیں.
और एक वो इंशाल्लाह इमेज क्रिएट करना, फेस्टिविटी Festival. काइंड ऑफ फेस्टिविटी। ठीक है मैं पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे आपने हाई स्कूल में गॉट मैनी स्पोर्ट्स टीम्स, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का, स्पेशली लोगों को बताने का कि पाकिस्तानी काउंसलेट इज इन्वॉल्व एंड दे वांटेड टू डू स्पोर्ट्स। फुटबॉल की आपने बात की और ये फैक्ट है कि बहुत से शायद लोकल्स को ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान से बन के बॉल आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी वांट टू एजुकेट द लोकल डायस्पोरा और कैनेडियंस, हाउ डू यू प्लान टू डू इट फर्दर अदर देन दिस कॉन्फ्रेंस? देखिए जी, योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। कल हमारे हाई कमिश्नर साहब भी यहाँ थे और उनके साथ भी इस मौजू के ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही थी एंड वी वर इन एग्रीमेंट कि जी हमें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी टारगेट करना है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। बट ऑफ कोर्स मेरा ख्याल ये है कि पहले सबसे पहले चैरिटी शुड बिगिन एट होम। पहले हम अपने मीडिया को कॉन्फिडेंस मिलें और इसके बाद वी विल फॉलो इट अप विद दी मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो, लोकल मीडिया जिसको आप कह सकते हैं। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। सर इसके अलावा हम इंशाल्लाह डिजिटल एसेट्स बनाएंगे, हम फ्लायर्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, वो आपसे शेयर भी करेंगे। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट अगेन आज की महफिल की रिक्वेस्ट ये है कि हम सारे एक पेज पे होके ये जो 2026 का वर्ल्ड कप है इसको हम जाने लगे। ये एक बहुत शानदार मौका है, कम से कम कनाडा में हर बंदा जाने कि ये जो वर्ल्ड कप बनते हैं ये पाकिस्तान से बनते हैं। तो इंशाल्लाह वो हमको कम्युनिकेट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी क्वेश्चन ही क्योंकि माशाल्लाह बहुत मुबारक हो मेरा इस कॉन्फ्रेंस के लिए और जो इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं और कल्चर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर joining us here. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you may have heard, the very first program for MBC we started years back. Pakistan Independence Day, very first one we started 25 years ago. Same day and night, 13 and 14 August, inshallah, alhamdulillah. Every year we continue. My saying is this: we have a very talented people, Pakistani. I dig people and bring those ones into my events. I spoke to Iftikhar Sahab a few days ago. A gentleman named is Mohsin Bakr. He is a Canadian Pakistani gold medalist in Paris champion. Years back he was paralyzed. He was partnered with Shahla as a model, and then he started playing ping pong. Today, he is lots of gold medals, not one gold. He's around the globe. No one knows. I brought him on my stage. He's back. I introduced to him. Same way, youngest Pakistani flyer, pilot, 14 years ago, I brought her also on my stage too. Likewise, if we can, during this time, bring those people to you, introduce them to the community so that the community can support them. Because this gold medalist now he's going at his own pocket. We are contributing. The people are not contributing. The government is not supporting too much. And it's an honor for us to be introducing these people, bring them out here, and take them along with us. Thank you. Thank you very much for drawing our attention to this important point. We appreciate that you have flagged this. I would request you to please give us the names of any high achievers in the field of sports, and we will definitely invite them all in this during this event. We will invite them to the stage in front of the all the audience, and we will introduce them. And they must be recognized. Their achievement must be recognized. We fully support the idea. Just please, I request you to after this event, you can take the email or phone number of Janjua sir, and please convey us the name. We will recognize them duly as per their entitlement and achievement. Thank you very much. Thank you. Sheikh Saab. सर मेरा सवाल ये बहुत सिंपल है, फीफा वर्ल्ड कप के जो ऑर्गेनाइजर हैं क्या वो इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और इस मैच के अंदर? जी महबूब भाई थैंक यू सो मच। बल्कि आज ही हमने उनकी ईमेल आई बस वापस आई है। अनफॉर्चुनेटली क्या नाम है शैला जो है फीफा की डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन टोरंटो, तो उनको हमने अप्रोच किया था, उनको हमने फॉर्मली इनवाइट भी किया, सफीर साहब की तरफ से भी इन्विटेशन गई, बट उन्होंने आज लेट किया है कि उनकी कोई प्रायर कमिटमेंट्स हैं तो वो नहीं आ पा रही। बट अगर सिटी ऑफ टोरंटो से जो फीफा वर्ल्ड कप और ऑफिशियल डेलीगेशन है उनको हमने इन्वाइट किया इस इवेंट में।
जैसा भाजपा साहब ने और काफ़ी पाकिस्तानी लीडर है हमारे इधर, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, हमें भी हिम्मत दे पाकिस्तानी वीडियो और बिजनेस मैन। इसी में एक छोटी सी मेंशन करें कि इस टाइम हमारा मुल्क जो है ना, आपको पता है कि पंजाब जो है इस्लाम की जद में तो बड़ा अच्छा इवेंट ही है। उस सिलसिले में जब इवेंट करें तो जो हमारे भाई इस्लाम के नासरीन हुए हैं, आपकी रसाई है, आप लोग इनके लिए जो करना चाहते हैं उसका भी आप ऐलान करेंगे कि जो हमारे दोस्त भाई बिजनेस मैन है ना इस्लाम काम के लिए पंजाब में आपको पता है बहुत बड़ी हेल्प हुई है, उस सिलसिले में इसको भी हम करेंगे, इस सिलसिले में आप कह रहे हैं। जी आबिद भाई बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अभी हमारा मुल्क पाकिस्तान खसूसन पंजाब का इलाका जो है बड़ा बैडली इफेक्ट हुआ है। हम सबकी दुआएं उनके लिए हैं। आज भी बल्कि हम हर रोज़ बैठे हुए इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। कल भी एक इवेंट हुआ था, हमारे सभी साहब भी गए, सी साहब भी गए उसी के लिए। तो हम हर वक्त इसके ऊपर सोच रहे हैं कि किस तरह हम इफेक्टिवली अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने पहले बताया कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असा आप लोग, इस मुल्क का असल जो असासा है वो डायस्पोरा है हमारी, और माशाल्लाह आप लोग खुद अपने मदद आपके तहत बहुत सारे फंड रेजर कर भी रहे हैं। और उसमें कल भी से एक इवेंट हुआ, उसमें सभी सब गए। तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे कि किस तरह इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के जरिए फॉर्मलाइज करें और इंशाल्लाह इसको और चैनल करें बढ़ाएं। उसमें सर आपकी आवाज़ ज़रा अच्छी है क्योंकि जितने भी बिजनेस मैन है वो आपकी जी बात सर, को बिल्कुल। फॉलो भी करेंगे। आपसे बैठ के डिस्कस करेंगे। ये थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड कप में फीफा में पाकिस्तान का फुटबॉल पे खेला जाता है। ये पूरी एफर्ट्स जो सारे लोग आपके साथ मिलके कर रहे हैं, पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फीफा में फुटबॉल का ऑनर, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। उसका होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो भाई हम यहाँ पर मुदई सुस्त हुआ हुआ तो उसको भी यहाँ बुलाएं कि भाई बैठे आगे के मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके यहाँ पर प्रोडक्ट बिकनी है और खेली भी जाती है, तो आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें आके। आप जो उसका कोई सवाल जवाब है वो करना चाहें तो उसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स शायद उसकी बात कर रहे हैं। इट्स अ गुड सजेशन। इस डेलीगेशन में तो मेरा ख्याल है नहीं सर, वो नहीं आ रहे, मगर करिए। बहुत अच्छा suggestion है। आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। और हम कहते हैं उनको भी एक रोड ट्रिप करवाना चाहिए। और एक हम अभी टाइम है हमारे पास, वर्ल्ड कप होने में अभी जो है रिएक्शन टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस शॉर्ट नोटिस पे तो शायद वो नहीं आ पा रहे, बट हम एक कोई उनको स्पेशली बुला के भी जो है हम दोबारा से एक ऐसा कोई इवेंट कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो है उनकी, हाँ अमेरिका में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके उनको जो है वो बुला सकते हैं। इट्स अ गुड सजेशन। थैंक यू। क्वेश्चन अब फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान इज द पाकिस्तान को। इसी तरह कनाडा में इस वक्त इट्स अ फैक्ट एंड इट्स बीन टॉक्ड अबाउट दैट क्रिकेट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट, और कनाडा की जो वो बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं वो दोनों पाकिस्तानी ओनर्स हैं। तो अंकुश भाई खासतौर पर मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि हाउ कैन यू कनेक्ट विद बिजनेसेस, क्योंकि वो सारा सामान भी साउथवुड में बनता है, तो आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? और इसके साथ सजेशन भी है, आई थिंक इट शुड बी एन एनुअल इवेंट बिकॉज़ क्रिकेट इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन कनाडा एंड लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर इन्वॉल्वड, सो व्हाट कैन काउंट विद सर आपने जो बात की वो खूबसूरत तरीकी बात है म्यूजिक टू माई, हमारा तो प्लान ही है इंशाल्लाह ताला इसी हिसाब से जो हम आए थे शुरू में, हम तो कह ही रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा इवेंट बना लें जो एनुअल बन जाए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पहले ही हमें मौका मिल गया और इसको हमने कर दिया। अब सक्सेस आप लोगों के ताबत से होगी। उस दिन अगर हम 500,000 बंदा वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और एक अच्छा फेस्टिवल बनता है तो इंशाल्लाह ताला हम इसको परमानेंट बनाएंगे। और अगेन क्रिकेट आपने बात की तो हमारा तो पार्टनर ही कैनेडियन किंग्स जो है वो उनकी टीम है जो माशाल्लाह आई थिंक फास्ट 20 मेरी तो यही है, तो फिलहाल में मतलब ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं इसके मैच में जाता नहीं हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि वहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी आती है, एंड दैट इज द रीजन कि हम खुद आए और हमने कहा कि जी पार्टनरशिप करना चाहिए। आपने वजह फरमाया कि इस स्पोर्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट क्रिकेट है, और इनका जो सप्लायर है वो भी इंशाल्लाह आ रहा है, वो ब्लैक एश स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान से सियालकोट से बना के लेके आ रहे हैं राइट। और आप यकीन माने कि जो हम मतलब कि भाई से बखैर बात किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कैनेडियन स्पोर्टिंग फूड एसोसिएशन का मार्केटिंग मैनेजर है उसका नाम है केविन, और इसकी कंपनी है बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब उसको मैंने बताया कि ब्लैक एश स्पोर्ट हमारा पार्टनर है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो वो परेशान हो गया कि आपके पास किस तरह आया। पता चला कि जी उसकी फुटबॉल लीग को जो क्लोज सप्लाई कर रहा है वो भी ब्लैक एश स्पोर्ट्स सप्लाई कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, देखें अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने इंशाल्लाह उसको प्रमोट करना है।
और ये हमारे चैनल Altawai sahab, Azmat Muji from Gold News. Consul General sahab, thank you for inviting us. आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आपने साउथ एशियन मीडिया को बुलाया. हम लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि फुटबॉल की हिस्ट्री क्या है, सियालकोट में बन रही है, फ़ख्र का मुकाम है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए. लेकिन यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वेस्टर्न है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट सेशन में उनको भी इनवाइट करें ताकि उनको पता चले और ब्रॉडकास्ट हो कि पाकिस्तान का मुकाम क्या है और कितने अरसे से पाकिस्तानी फुटबॉल जो है वो इसका मेन आइकन है इस टूर्नामेंट में. सर ये आपने खूबसूरत बात की और ये हमारी वीकनेस है. कोई मैंने अभी आते ही शुरू में ही पहले बात की थी, लताफत भाई से भी बात की मैंने अपना, तो मैंने बात ही नदीम भाई से बात की कि हमने इंशाल्लाह उनको इन्वॉल्व करना है. फरीदी भाई बैठे हुए हैं पीछे, मैंने उनको अपना स्टाफ बना लिया. मैंने कहा सर गाइड करें हमें कि इंशाल्लाह करें. काउंसिल जनरल साहब ने भी और सफीर साहब ने यही बात की है कि हमने इस इवेंट को मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आना है. तो अभी मैंने लिस्ट ली है, फरीदी भाई से भी ली है, नंबर लिया है, मैं खुद कॉल करूँगा और कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह ताला. सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये मीडिया ब्रीफिंग है जो कि 16 को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मेरे ख्याल में कुछ वेंडर्स वगैरह भी मौजूद होंगे, राइट? बिल्कुल जी, और सारे एक्सपोर्टर्स पे सारा कुछ तमाम हमारे एक्सपोर्टर्स भी तो ये असल में उसके लिए ही ये मीडिया ब्रीफिंग है आज, और उसमें काफ़ी लोगों से मैन्युफैक्चरर से भी मुलाकात हमारी होगी. ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम. सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी काविशें कभी हुई भी नहीं है पाकिस्तानी कौंसिल की तरफ से. ये मैं अप्रिशिएट करूँगा कौंसिल जनरल साहब को, अल्तमश साहब को और हसन साहब, ये जो टीम बैठी हुई है और जो हमारे मोहम्मद सलीम साहब हाई कमिश्नर, ये उन लोगों की काविशें हैं जो कि इस चीज़ को ऊपर लेके आ रहे हैं और पाकिस्तानी मसलियात के ऊपर इतनी मार्केट कर रहे हैं. मैं सब प्लीज़ जी मैं सभा से मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब फीफा एक साल रह जाता है तो फीफा अपनी इंटेंशंस बताता है पाकिस्तान को, सियालकोट को, कि वी आर गोइंग टू यूज योर बॉल. उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये बात आप सब लोगों को मालूम ही हो कि जब ये तय हो जाता है कि पाकिस्तान गेम वहाँ मान लो कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम होती है जो क्वालिफाई करती हैं वो हमारी फुटबॉल खरीदती हैं और उससे प्रैक्टिस करती हैं पूरे साल. तो अगर आपको कोई इंडिकेशन मिले कि फीफा ने कोई रिक्वेस्ट डाली है सियालकोट में तो आप हमें बताइए, तो हम ना अपने अखबारों में लिखेंगे. तो कम से कम कनाडा के जितने क्लब हैं वो सारे आपका फुटबॉल सर ऑलरेडी हो गया माशाल्लाह, ऑलरेडी हो चुका है. इस 2026 में वर्ल्ड कप में ऑलरेडी बॉल हो गई है, उसका नाम भी आ चुका है, उसका मॉडल भी आ चुका है. अब उस पर आप एक तस्वीर निकालें. जी बिल्कुल नोटेड सर, बिल्कुल यही मकसद है, यही मकसद क्या है. एक बड़ी सी बातें खुशी की बात है, मैं न्यूज़ देख रहा था और यहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट फुटबॉल, स्ट्रीट सॉकर शुरू किया हुआ है. होमलेस, राइट. You know उसने क्या कहा? We took this idea from Pakistan. That's the mainstream. Okay, and this मेरा मैं ऐसे करके देख रहा था, मैं एकदम सुन के तालियां बजा के there you go. So माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं and we are very proud of you. थैंक जी फिलहाल साहब प्लीज. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा राजा साहब का, साहब का और हमारे बड़े प्यारे भाई तमश भाई का और आप तमाम मीडिया का जो यहाँ पे मौजूद हैं जितने भी लोग. और मैं थैंक यू करता हूँ कि आप दिन रात कम्युनिटी को कवरेज देते हैं और दिन रात में देखता हूँ कि हर तरह के इवेंट को आप लोग प्रमोट करते हैं. तो वंस अगेन थैंक एंड काशिफ भाई थैंक यू वेरी मच. कैनेडियन किंग्स जो है वो इवेंट जो हम अरेंज करने जा रहे हैं कौंसिल जनरल पाकिस्तान साहब का, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वहाँ पे 10x10 की स्क्रीन लग रही है जो कि लाइव मैच वहाँ पे उस स्क्रीन में आएगा. मिली नगमे वहाँ पे चलेंगे उस स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जंगल कैसल, फ्री फूड, फ्री जैसे कि सॉकर बॉल वो और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविटी स्पेशली बच्चों से रिलेटेड हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी. और कोशिश हम कर रहे हैं कि 2 सॉकर बॉल टीम्स जो बच्चों की हो उनका वहाँ पे एक मैच होगा और एक टीम जो पाकिस्तान शाहीन के नाम से जो बनाई गई है और उसकी यूनिफॉर्म भी सारी बन चुकी है वो बनेगी. और एक टीम जो होगी कैनेडियन किंग्स की होगी जो कि क्रिकेट मैच होगा वहाँ पे और उन्हीं का फिर सॉकर बॉल भी वहाँ पे होगा. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको मैसेज दें कि 16 सितंबर को
अराउंड 3:30 टू बिटवीन 4 o'clock वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद हों, ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी जितनी भी होंगी और जो हमारे गवर्नमेंट का, जो हमारी एम्बेसी का ड्रीम है और हमारे मुल्क का है, उसको हम प्रमोट कर सकें। अगर कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो डेफिनेटली वो चीज़ उस तरह उसकी प्रमोशन नहीं होती। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे कि लताफ़ा भी बैठे हैं, इनकी बेटी है CP24 में, और नदीम भाई के रेफरेंस है, अंजुम भाई के, आप तमाम मीडिया के हैं, आप भी उनको इनवाइट करें कि उस दिन 16 सितंबर को वो ग्राउंड में वहाँ पे आए। और हम भी कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वैसी भी कोशिश करेगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस इवेंट को कामयाब करें। कामयाब तभी होगा जब मैक्सिमम मैसेज कम्युनिटी तक जाएगा और कम्युनिटी वहाँ से निकल के ग्राउंड में आए। तो वो एक पहली दफ़ा बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे होने जा रहा है, जो कि स्क्रीन भी लग रही है और लाइव कवरेज होगी उसकी, और यूट्यूब के ऊपर भी वो लाइव चलेगा ऑल ओवर। और इसमें जो ब्रैम्पटन सुपर लीग है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, डायरेक्टर शुएब का, फैसल का और तारिक का, कि उनकी भी सपोर्ट है हमारे साथ, कि उन्होंने ग्राउंड जो है वो हमें अवेलेबल की, और वहाँ पे जितना भी अरेंजमेंट हो रहा है वो एम्बेसी की तरफ से कैनेडियन किंग्स जो है वो उसको अरेंजमेंट कर देते हैं। जी नहीं, ये बेसिकली ये मैच है पाकिस्तानी गुड्स को प्रमोट करने के लिए। जो मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं वहाँ से वो खेलेंगे साथ में, आप लोग मौजूद होंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान की जितनी भी गुड्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे सॉकर बॉल, तो वो सॉकर बॉल वहाँ पे हम उसके साथ प्ले करेंगे, फिर उसी सॉकर बॉल को हम मीडिया पे लेके आएंगे कि इससे हमें प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह क्रिकेट के बाद इस टीम में खेलने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप कैप्टन है, आप आ जाए, अपना नाम लिखवा दें, कोई भी है। तो मैं थैंक यू करता हूँ वंस अगेन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम इसमें इसको प्रमोट करें और कम्युनिटी को वहाँ पे जो है उसके टाइमिंग बता दें। टाइमिंग जो है वो 16 को 4 से 7 बजे, लेकिन 4 o'clock वहाँ पे सबको होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे डेफिनेटली, और वहाँ पे हम अपने मुल्क का और नेशनल एंथम और कैनेडियन वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी के बाद मैचेस होंगे, और एंड में जैसे कि हमारे सफीर साहब और कौंसल बादल साहब हैं, वहाँ पे टीमों को जो शील्ड्स वगैरह कम्युनिटी से रिलेटेड जो इवेंट पर कुछ अवार्ड दिए जाएंगे और सारी चीज़ें लेडीज की टीम बिल्कुल बन सकती है। और हम आप लीड करें। पाकिस्तान शहीद के नाम से तो टीम हमारे पास मौजूद है, और डेफिनेटली ये आपने सही पॉइंट किया। मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर मुनीबा शेख यहाँ पे बैठी हुई है कैनेडियन किंग्स की, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लें, एटलीस्ट एक सॉकर बॉल या क्रिकेट मैच जरूर खेलें। ये आपकी, सायरा की और इशल यहाँ पे बैठी हुई है। तो इशल जो है बैठी हुई है, मुनीबा है, सायरा है, इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, और ये हाल में बैठे बैठी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और जितने आप लोग बैठे हुए हैं, जो भी लेडीज़ वो करना चाहिए वो मुनीबा को नाम लिखवाएं, और ये टीम जो है वो बना देते हैं। मुनीबा इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक टीम बनाएं 2, और वहाँ पे हम सॉकर बॉल या क्रिकेट मैच जो है, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे होने और बहुत ज़्यादा टाइम है। ये सेक्शन ऑफ सितंबर की बात कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू आपने इसको वीकेंड पे क्यों नहीं रखा? सर वो डेलीगेशन जो आ रहा है उसके साथ फिट। असल में एक चीज़ मैं आपको भी बता दूं भाईजान के ग्राउंड की जो अवेलेबिलिटी भी है ना, वो भी वीक डेज में है। मेन थोड़ी सी वजह ये हुई सिटी की तरफ से अवेलेबिलिटी। अच्छा, कौंसिल साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। अंजुम मलिक, वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन से सर, कि ये जो वेंडर्स पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हैं, इनकी लिस्ट हमें मिल सकती है, सो वी कैन स्टार्ट प्रमोटिंग देम इन अ मच बेटर फैशन। बिल्कुल जी, कंप्लीट डिटेल्स, इनकी कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाएंगी। इनकी कंपनीज के नाम, इनके अपने नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वेबसाइट, ये वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो सर मुझे याद है जो पिछला एक कन्वेंशन हुआ था ये डाउनटाउन में, जिसमें कि बहुत से वीज़े नहीं लगे थे। जब मैंने आपसे बातचीत की थी, हमारे बहुत से जो स्टॉल्स थे वो एम्प्टी थे, जबकि हमारे वेंडर ने पे भी किया था। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मेक श्योर किया जाए कि मैक्सिमम वीज़े लग सके, तो उसमें कोई स्ट्रेटजी बनाई जी। अभी तक तकरीबन 8 कंपनीज के जो है वीज़े लग चुके हैं, टारगेट हमारा 10 का, और 10 का हमारा मिनिमम मतलब टारगेट था। उम्मीद है कुछ अभी पेंडिंग है, 2-3 शायद और भी ऐड हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन गिवन सर्कमस्टांसेस में। अगर 10 से कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर दें तो एक मुनासिब लेवल का ये नुमाइंदगी जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। any other
And these are all sport manufacturing companies from जी सर Pakistan. जी, all sports, different, you know, not only football, different sports. And all selected by Trade Development Authority of Pakistan. Carefully selected by the government of Pakistan through Trade Development Authority. अच्छे जो रेप्यूट वाली कंपनीज हैं वो. So they got shortlisted by the government. in जी जी Pakistan. जी, exactly. ठीक. So they are all from Sir. Yes, they are all from Sialkot. शुक्रिया अदा किया जाए